اور ان کی جو شاعری ہے وہ پیغام جو ہے وہ پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان پہ اگر ہم عمل پیرا ہوں تو وہ اس سے ہمیں اس ملک کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں بہت مدد ملے گی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، امن ہو، محبت ہو، اخوت ہو، یہ پیغام تھا ان کا۔ تو اس لیے ان کا پیغام جو ہے وہ ہر جگہ جانا چاہیے۔ ہم بھی ایک روحانی درگاہ سے تعلق ہے ہمارا، اور ہم سلسلہ قادریہ سے ہیں، اور حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ان کی جد سے ہیں، تو اس لیے ان کا بھی یہی پیغام تھا، اور ہمارے حضور پاک کا بھی یہی پیغام تھا کہ ان کی جو ٹیچنگ تھی، جو پریچنگ تھی، اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا۔ انہوں نے بیرل آف گن کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ نہیں کی، اپنی شخصیت سے انہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو مائل کیا اپنی طرف۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، موجودہ جو صورتحال ہے ملک کی معاشی حالت یا سیاسی حالات، اس کے پیش نظر ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہ وقت نہیں کہ ہم اختلاف رکھیں۔ اختلاف رائے جمہوریت ہے، مگر جمہوریت کو ہم اس طریقے سے نہ چلائیں جس سے ملک کے امن میں، ترقی میں، معاشی حالت میں، اس میں تنزلی ہے۔ گیلانی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کل گورنر صاحب کے پی کے نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ اپنا کے پی کے میں جو عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے کافی ان کی اپنی جماعتوں کی جانب سے، جو منسٹر صاحب نے بھی استعفیٰ دیا ہے وہاں پہ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے گورنر صاحب کہ بھئی یہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ ابھی کیا یہاں پر مخدوم جمیل الزما کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور امن امان قائم کرانے میں، اور ڈاکو راج ہے، اور میں اسمبلی میں آواز اٹھاؤں گا، اور آئی جی سندھ کو بھی خط لکھا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آپ کی خبر نہیں بنے گی کیونکہ میں بھی صحافی ہوں، تو اس لیے آپ نے جو سوالات کیے ہیں اس کے جوابات انہی سے پوچھیں جنہوں نے جواب دیا۔ گیلانی صاحب، آپ بھی روحانی گدی کا پیشوا ہیں، اور یہ بتائیں کہ ایک اور روحانی گدی کے پیشوا اس وقت جیلوں میں دھکے کھا رہا ہے، وہاں پہ اسے انتقام لیا جا رہا۔ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ غیر جمہوری عمل نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کو تھوڑی سی اسٹڈی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جب کچھ سوال ہوتا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ میں 9 سال جیل میں رہا، اور اس پداش میں رہا کہ میں نے غریب لوگوں کو نوکریاں دی تھی، اور میں نے آج تک اف بھی نہیں کی، میں نے کمپلینٹ بھی نہیں کی، میں نے جج کا نام بھی نہیں لیا، میں نے کسی ادارے کا نام بھی نہیں لیا، میں نے کوئی اسٹیٹ سیکرٹ ڈسکلوز بھی نہیں کی۔ تو اس لیے، اور صدر آصف علی زرداری نے 11 سال جیل کاٹی، اسی ہی طریقے سے محترمہ صاحبہ نے جیل کاٹی، بھٹو صاحب شہید ہوئے، اور ہمارے بہت سے ہمارے جو فریال تالپور صاحبہ ہیں ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور دوسری قیادت کو بھی، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، حمزہ شہباز ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، ان کو جیلوں میں جانا پڑا۔ تو اس لیے میں یہ تنقید نہیں کر سکتا کہ کس کو جانا چاہیے یا کسی کو نہیں جانا چاہیے، مگر یہ عدالتوں کا کام ہے اس کے اوپر ان کو ریلیف دینا۔ تو مجھے بھی کتنے عرصے کے بعد مجھے عدالتوں نے ہی انہوں نے مجھے ضمانت پہ رہا کیا تھا، جبکہ میں نیب عدالتوں میں تھا، اور اس وقت بہت سخت حالات تھے۔ اور اسمبلیوں کو خریدا گیا ہے، مولانا صاحب کا اسٹیٹمنٹ، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب میرا دوست ہے، نو کمنٹس۔ سر، مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف روڈوں پہ نکلنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے بولا کہ ان حکومتوں سے، ان سیاستدانوں سے ہم تنگ آ گئے، ہمیں پاکستان میں اب تبدیلی کے حکمران چاہیے۔ تبدیلی میں پھر یہی لوگ آ جائیں گے تو پھر مولانا پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے۔ مولانا صاحب نے رات اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ حکومت خود مختار نہیں ہے۔
तो अगर जो खुद मुख्तियार हो उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, मुल्क की तारीख में पहली बार जो है किसी रिटायर्ड जनरल का एहतसाब होने जा रहा है, कोर्ट मार्शल तक बात जा रही है, इसके बारे में आप करें। मेरी राय ये है कि तमाम इदारे अपने अपने तय वो एक खुद मुख्तार है। ये मिलिट्री का जो इदारा है ये उनके अपने लॉज के तहत है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं। सर 9 मई के हवाले से 9 मई के हवाले से बिलावल साहब ने भी ये कहा है कि भाई जो 9 मई के मुतासरीन आज तक भी दरबदर हो रहे हैं इंसाफ की खातिर, ये बिलावल साहब ने कहा। और आला अदलियों को उनको इस तरह से इंसाफ नहीं मिल रहा था जिसे इस तरह से मिलना चाहिए था, इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? मैं मुझे भी इंसाफ नहीं मिला था, मैं अदलिया को यही सिफारिश कराऊँ कि जल्द इंसाफ दिया जाए। सर इतनी गति से आपका ताल्लुक है, ये भी अजीम हो जाए शायद के सरताज है, लेकिन बदकिस्मत ये है कि यहाँ पर कितने अरसों से यहाँ पर वज़ीर आज़म आते हैं, सुदूर भी आए हैं, मिनिस्टर साहबान भी आते हैं, लेकिन भिक्षा जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिक्षा का इतना बड़ा नाम है, ना ये तहसील है, ना ये सिटी सर्वे है, ना ये ज़िला है। तो आप खुसूसी तौर पर भी तो आप सेनेट के चेयरमैन भी हैं, कम अज़ कम इस शहर को तहसील का दर्जा दिया जाए, ज़िले का दर्जा दिया जाए, छोटे छोटे कस्बे तहसील बना दिए जाते हैं। अभी हाकम आबाद की बात हो रही है कि वो भी ज़िला बनेगा, तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का इतना भी हक नहीं है। देखें मैं आपसे गुजारिश करूँगा, ये ज़िला बनाना, तहसील बनाना, ये जो सूबाई असम्बली है उसकी सवाबी है। उनको चाहिए कि वो कोई करारदाद पेश करें, चीफ मिनिस्टर साहब से बात करें, तो वो उसको यकीनन वो करेंगे। और जहाँ तक आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई शहर ज़िले बन गए, कई ज़िले सूबे बन गए। तो दाता साहब ने लिखा था कश्फुल मजूब में, दाता साहब ने लिखा था लाहौर में जो बहुत बड़ी अजीम उनकी एक महागदी है, तो वो उन्होंने लिखा था कि मैं मुल्तान के मज़ाफ़ात में रह रहा हूँ, यानी कि मुल्तान वॉज द सिटी एंड लाहौर वॉज द सबर्ब्स, यानी वो देहात था और मुल्तान शहर था। आप बताएं क्या फ़र्क है? सर जी, तमाम सियासी पार्टी साथ बैठने की बात तो करती है, मगर पेशरफ पहल कोई नहीं कर रहा। पहल तो क्या पीपल्स पार्टी पहल करेगी? पीपल्स पार्टी ने हमेशा पहल की है। ये बताएं आइन किसने दिया, ये बताएं आइन को बहाल किसने किया, ये बताएं कि आइन की खातिर, जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ किसने दी? भुट्टो साहब ने आइन दिया और उनको शहीद किया गया। आज अदालत भी मान रही है कि हमारा फैसला दुरुस्त नहीं था, तो इसलिए उनको इंशाल्लाह पोस्टह्यूमस जो अवार्ड, हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, उनको दिया जाएगा। पहले तो कहते हैं शहीद भी नहीं है, वो शहीद का नाम भी ना लिया जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्ट्रगल की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती है, डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, वुमेन राइट्स के लिए लड़ती है, किसानों के लिए लड़ती है, मज़दूरों के लिए लड़ती है और अक़लियतों के लिए लड़ती है, नौजवानों के लिए लड़ती है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी अपना काम कर रही है और अगर हमारी इस्लाह करनी हो तो हमें कुछ सही। सर पूरे मुल्क में मोटरवे बनाए जा रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मटियारी में करप्शन हुई, उसकी वजह से मोटरवे ताख़ीर का शिकार होगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे अभी तक नहीं बना। अब ये कहा जा रहा है कि BOT के जरिए इसको बनाया जा रहा है। ये बताएं सर, आखिर सिंध ने क्या कसूर किया? हादसा होते हैं, लोग मरते हैं, तो आप जो चेयरमैन सेनेट बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं मछली बाजार तो जल्द बन जाते हैं, लेकिन जो मुझे मछली बाजार सेनेट नहीं बनती, तो इसलिए आप करेक्ट करें। तो इसलिए बड़ी संजीदा सेनेट है और उसको सुनने के लिए कई तालिब इल्म आते हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, कई ऑफिसर्स आते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी तकारीर सुनते हैं। हम उनको मौका देते हैं अपोजिशन के कि वो अपना कथारसिस करें, अपनी राय दें। तो इसलिए एक तो उस पर मुझे ऑब्जेक्शन थी, और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ ये जो मोटरवे की बात हुई ये सेनेट में उठाई गई है और उसका जवाब भी दिया गया है और इंशाल्लाह हम इसको फॉलोअप करेंगे। ये राइट है और ये सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो कराची है और ये हब है
ये माशी एक्टिविटीज़ का, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा तरजीह होनी चाहिए। सर मुल्क भर में नवाज की वफाक में हुकूमत है, ठीक है, वजीर आजम भी उन्हीं के हैं, लेकिन कायदे मुस्लिम लीग नवाज जो हैं पंजाब में बिजली के टैरिफ का ऐलान करते हैं, बाकी सूबों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं। देखें मैंने इस सिलसिले में जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं और वो सरदार अवैस लगारी साहब हैं, और वो मुझे एक दफ़ा मिले थे और उन्होंने कहा था कि एनर्जी के ऊपर जिस मौजू पे ये हाउस मेरी बात सुनना चाहे, मैं इसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा, हम कमेटी ऑफ द होल हाउस हम बनाएंगे और वो आकर इनके बारे में सवालात। अच्छा सर, क्या वजह है कि मुल्क जो है बहरानों का शिकार है, खुसूसी तौर पर बिजली गैस नहीं है, पीने का पानी साफ नहीं मिलता, वजह क्या है? पीपल्स पार्टी ने तवील अरसा हुकूमत की है। देखें, ये तो शुक्र है कि अब आप पीपल्स पार्टी से थोड़े से टल गए हैं। पहले ये कहते थे कि इन दो जमातों ने बारियां लगाई हुई हैं, कभी पीपल्स पार्टी आ जाती है, कभी नून लीग आ जाती है, फिर कहते थे ये फ्रेंडली अपोजिशन है। तो अल्लाह ताला का फजल व करम हुआ कि पीटीआई भी आ गई। अब तीनों को लोगों ने देख लिया है कि किसने क्या क्या काम किया है, और अगर हमें कामयाबी वहाँ मुल्तान से नसीब हुई है या जनूबी पंजाब से, वो कारकर्दगी की बुनियाद पे हमें वोट लोगों ने दिया है। इसलिए दिया है कि तीनों में मुवाजना जब किया है तो पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। सर मुल्क भर में मोटरवेज फेडरल गवर्नमेंट खुद बनाती है, मगर सिंध में बीओटी के तहत मनसूबे के तहत बनाए जाते हैं, प्राइवेट कंपनीज आती है, उस वजह से मोटरवेज ताखीर का शिकार होते हैं, करप्शन का शिकार हो जाते हैं। आखिर सिंध में 3 सूबों में तो फेडरल गवर्नमेंट फीडर खुद बनाती है, बीओटी के तहत सिर्फ सिंध में क्यों काम किए जाते हैं? देखें, जब मैं वज़ीर आज़म था तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है पूरे मुल्क का, उसका जो बजट होता है वो पूरे मुल्क में पॉपुलेशन की बुनियाद पे एक क्राइटेरिया की बुनियाद पे एनएफसी बनता है, और नेशनल फाइनेंस कमीशन के मुताबिक वो सब सूबों को अपना हिस्सा जाता है। और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो जैसे हमारा सराइकी बेल्ट था, उसको 34% हिस्सा था। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक 34% उनको सिर्फ उस वक्त मिला जब मैं वज़ीर आज़म था। तो इसलिए मुझे चाहिए कि हमें पार्टी को चाहिए कि हमने टेकअप किया है और बिलावल साहब ने टेकअप किया है, और वज़ीर आज़म के जो वफद में जो बिलावल साहब गए थे चेयरमैन साहब, तो मैं भी उनके हमरा था। तो हमने यही कहा कि जब आप बजट तरतीब दे रहे थे तो हमसे मशावरत ज़रूर करनी चाहिए थी। आपने मशावरत अगर नहीं भी की तो जो आपके ऑन गोइंग स्कीम्स हैं उस पर पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। जो आपके ऑन गोइंग स्कीम है उनको मुकम्मल होना चाहिए। थैंक यू सर। कोई और सवाल नहीं? थक गए।